Good morning, class 10. Very long time are not meeting here. So today now start the class 10th. All of class 10 chapter number 13 medical fields का जो चैप्टर चल रहा था उसी की रिगार्डिंग में नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. So you can see in my thumbnail there are the two rules and one device. Fleming left hand rule, Fleming right hand rule and galvanometer. So today we discuss, so first of all the Fleming left hand rule. So please all of my screen. Fleming left hand rule, hold the thumb and forefinger and middle finger of your left hand, this type left hand, such that they are multiple perpendicular. If four fingers point in the direction of the medical field, it means four finger point, this point, four finger point is the direction of the medical field, and middle finger, this finger, middle finger is the direction of the current, and thumb will be, then the thumb will point in the direction of motion of force. Okay, you can see this picture, north and south pole, there are any conductor are situated there and current I up to down, then there are created some left hand, so thumb are create the direction of force, four finger are medical field direction, and middle finger, this finger, direction of current. Okay, so you can see this type very easy, clear. The thumb is create the motion of force, direction of motion of force, direction of current, and fourth finger is the medical field. Okay, all of you. Now next point. And now second rules is the left hand Fleming right hand rule. Okay, it means this type rule. This type rule. This type is the Fleming and this type is the right hand rule. Okay, so hold the thumb, the forefinger and middle finger of right hand at the right angle to each other. If the forefinger is in the direction of the medical field and thumb point in the direction of the motion, direction of the motion of the conductor है जो दे रखा है यहाँ पर मैंने फिगर के अंदर, thumb point in the direction of the motion of a conductor, that the direction of induced current is indicated by the middle finger. This type induced current indicated by the middle finger. It help in the working principle of the electric generator. इलेक्ट्रिक जनरेटर में जिस टाइप के पॉइंट को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे. ओके, तो अगेन डेट फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिकल फील्ड एंड thumb points in the direction of the motion, okay, of the conductor, and then the direction of the induced current is indicated by the middle finger, this point. Okay, this point, thumb is the direction of the क्या create कर रहा है thumb, direction of the motion, फोर फिंगर मैग्नेटिकल फील्ड लाइन को, एंड इंड्यूस करंट दिस टाइप का ये वाला जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट को डायरेक्शन करता है. इट हेल्प इन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर and also used to find the direction and induce current. Okay, see this picture, right hand का एक फिगर दे रखा है, thumb जो है मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन और मोशन ऑफ कंडक्टर को शो कर रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, मिडिल फिंगर जो है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है. ओके, सो देयर आर द टू पॉइंट्स आर क्रिएट हियर, इज द लेफ्ट हैंड रूल एंड हियर इज द राइट हैंड रूल. अगेन रिपीट द राइट हैंड रूल, तो बोथ direction of the motion, four finger magnetical field, and this is the induced current. Okay, so ये आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोथ आप जो रूल्स है इसको राइट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो गैल्वेनोमीटर्स है. And next point is the very interesting point is the galvanometer. Galvanometer you can see in your 10th class books in the very simple smallest articles are given in your book. Okay, but in present time is the all point are very important because the syllabus is the 30% is the decrease. So other syllabus are very important.
discuss the galvanometer is very deeply discussed today. Now galvanometer is the name of the moving coil galvanometer. A galvanometer is a device to detect current in circuit. It is the main point. It is the main point of detect current. Detect current in circuit. Okay. So commonly used the moving coil galvanometer is named. galvanometer की नेम को commonly MCG के फॉर्म में लिखते हैं. कॉमन moving coil galvanometer is named so because it is used to current carrying coil है. ये current carrying coil that is the rotate in a magnetical field due to the torque acting. एक न्यू वर्ड आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. टॉर्क्यू का मीनिंग है कि रोटेशन जो करेगा. जब ये रोटेशन करेगी कॉइल, जब मान लो सपोज इस टाइप की कॉइल है आपके पास में, ये टाइप की कॉइल ये रोटेट करेगी तो रोटेशन से जो फोर्स डेवलप होगा उस फोर्स का नेम है टॉर्क्यू. ओके. सो टॉर्क्यू एक्टिंग ऑन इट. इसमें टॉर्क्यू एक्टिंग करेगा. जो ये रोटेशन से जो कॉइल क्रिएट होगी इसमें टॉर्क्यू एक्टिंग करेगा. ओके. ये जो आपका डिवाइस है ये आपका गैल्वोमीटर है और इसका मेजरिंग पॉइंट जो है ये इट इज मेजरिंग करंट 10 की पावर -6 एम्पीयर यानी कि माइक्रो एम्पीयर को भी मेजर कर लेता है. ओके. जो ये कॉइल आप देख रहे हैं गैल्वोमीटर की जो कॉइल लगेगी आपकी डिवाइस नहीं है, फिर भी मैं डिटेल में बोल रहा हूँ कि गैल्वोमीटर की जो कॉइल है वो फास्फोरस ब्रांच की होगी जो सॉफ्ट आयरन है. और फास्फोरस ब्रांच की क्यों ये वर्ड इसलिए यूज किया है कि आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि गैल्वोमीटर की जो कॉइल है वो किसकी मेकिंग है. तो फास्फोरस ब्रांच की इज यूज्ड टू सस्पेंसिंग ऑफ ए एयर स्प्रिंग. इसका जो पॉइंटर है इस टाइप का होता है. देख लीजिए मिडल में ये जीरो रहता है. बुक में ये पिक्चर है आपके लिए देख लीजिए. इधर मिडल में इसका पॉइंटर रहेगा. ये लेफ्ट डायरेक्शन और ये राइट डायरेक्शन है. यहाँ पर स्केल्स है इसके पास में, यहाँ पर और यहाँ पर भी इसके स्केल्स है. ओके. तो ये जो पॉइंटर है ये एयर स्प्रिंग का होता है. इससे सेवरल रीजन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इससे क्या है कि फास्फोरस ब्रांच का आप क्यों लेंगे क्योंकि इसकी गुड कंडक्टर है. इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सा सब इसका यूज करेंगे. परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है इसका रोटेशन इस साइड और इस साइड रोटेशन वेरी इजी गोइंग होना चाहिए. कहीं पर भी ये जो है जब आपके रुकना नहीं चाहिए. ओके. और मैंने आपको ये बोला भी है कि मेजरिंग ए करंट 10 की पावर -6 यानी कि माइक्रो एम्पीयर की करंट को भी ये यूज करंट यदि पास होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा. इसलिए गैल्वोमीटर को हम सेंसिटिव डिवाइस कहते हैं which is very sensitive device. और सेंसिटिव डिवाइस होने की वजह से ये माइनस में जो करंट आया 10 की पावर -6 एम्पीयर माइक्रो एम्पीयर को भी रीड कर लेगा. ओके फ्रेंड्स, आज का जो पॉइंट था टुडे का जो वीडियोस है वो 2 रूल्स और एक डिवाइस को यूज करने के लिए है. इस डिवाइस के अंदर एक और चीज बता दूं, इस गैल्वोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं अमीटर के अंदर. इस गैल्वोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर के अंदर. अमीटर है जो कि सर्किट में सीरीज में जोड़ेगा, लेकिन अमीटर को जब गैल्वोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे आपके लिए छोटा सा और मैसेज बता देता हूं थोड़ा सा. जब भी आपको गैल्वोमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे, ये आपका गैल्वोमीटर है, इसको आप अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके पैरेलल में एक शंट लगाएंगे जो स्मॉल रेजिस्टेंस कहलाता है. ओके. ये आपका शंट है तो ये स्मॉल रेजिस्टेंस कहलाता है. जब आप इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे अमीटर में कन्वर्ट करेंगे. ओके. और यदि गैल्वोमीटर के सीरीज में यदि हाई रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर दे जोड़ देवे तो ये कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में. किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा वोल्ट मीटर के अंदर जो है आपके वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है. और ये कन्वर्ट हो जाता है अमीटर में. क्यों अमीटर में क्या लगता है शंट. शंट क्या है स्मॉल रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में लगेगा. लेकिन अमीटर सर्किट के अंदर कैसा लगेगा सीरीज में. और वोल्ट मीटर जो है इसमें हाई रेजिस्टेंस लगेगा लेकिन सर्किट पे कैसा जुड़ेगा पैरेलल फॉर्म में.
ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पर आपको मैंने आज डिस्कस किया। ओके, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट पास करें। ओके, थैंक यू।